Hello, assalamu alaikum to everyone. I hope you are doing well and having amazing. Our today's lecture we will start with this party line of Iqbal. Iqbal says in his party, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर. Okay, what is our today's topic? We will deal in today's lecture about model. I hope you are familiar about model. What is model? Models are a group of auxiliaries verb. I hope you are familiar about auxiliaries verb. I will just give a hint to you about auxiliaries like is, am, are, do, does, have, would. These are auxiliaries verb. We can say model auxiliaries. What is model auxiliaries? Yeah, model verb. Now today we will go to discuss. Yeah, today I will teach you this topic very well in a conceptual way. Okay. Model verb can, could, may, might, will, would, shall, should, and ought to. These are model verbs. What is the uses of these model verbs? What is the function of this model verb? I will tell you everything in a detail through an example. Okay, but little bit passion and must watch this video lecture. This is must important to everyone. After you watch this video lecture, your concept regarding the model will be finished. You can use this model verb in a perfect way during your speaking and also in your writing. That's it, my dear. Yeah, where we use this model verb and how we use this model verb and in which situation we can use this model verb. I will tell you. Okay, don't worry. This model verb we use to express, to show ability, obligation, advice, suggestion. All of these we express, we showing these activities, we use model verb. Okay, I will tell you all model verbs through a slide with an example in a conceptual way. Okay, but before we will move to our today's lecture section, there I will teach you this topic through a slide in a conceptual manner. But if you're new on this channel, please don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon. This is most important. Okay, don't forget to do these two work. Okay, this is your job. But don't forget to watch this video lecture. This is most important. After you learn about model, you can use this model verb during your speaking. These model verbs make you talk very politely, very calm. Yeah. After you watch this video lecture, then you use this model verb during your speaking. It's look like that this guy is a English speaking mind. Yeah, he learned something. He's using those words that's showing a politeness in his speaking. Yeah, that's it, my dear student. This is the benefits of models. Okay, now let's move to our today's lecture section that I will teach you this topic very well in a conceptual way. But I want this thing remind once again to all of you, don't forget to subscribe my channel and also share my video and give your opinion regarding this video lecture. Okay, don't forget to give your opinion regarding this video lecture. Now let's move towards our today's lecture section. Okay, अच्छी तरह देखना वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से अच्छी तरह एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा. मॉडल, व्हाट इज मॉडल?
मॉडल जो है ये एक ग्रुप ऑफ एक्सिलरीज है लो। आई होप यू आर फेमिलियर अबाउट एक्सिलरीज वर्ब। हम उसमें नहीं जाएंगे कि एक्सिलरीज को आपको डिस्कस करते बैठे हैं, हम सीधा मॉडल्स को ही अच्छी तरह आपको समझाएंगे। व्हाट इज मॉडल? मॉडल जो है ये एक एक्सिलरीज ऑफ वर्ब होते हैं लोग। ये क्या करते हैं ज़माना? मॉडल्स जो है, मॉडल्स वर्ब्स आर ए स्पेशल काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये एक तरह की एक हेल्पिंग वर्ब है। और ये मॉडल वर्ब क्या करते हैं ज़माना? ये हेल्प करते हैं लोग कि मेन वर्ब को एक्सप्रेस करने का, या मूड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मूड्स को एक्सप्रेस करते हैं कि सब्जेक्ट की मूड्स कैसा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये मदद करते हैं लोग मॉडल। और क्या करते हैं ना, और उसी के साथ साथ ये इंडिकेट करते हैं कि सब्जेक्ट के मूड क्या है, उसको दिखाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मदद करते हैं लोग मॉडल वर्ब। सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स क्या क्या हैं और इस मॉडल वर्ब को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस किस सिचुएशन में हम इस मॉडल वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। हम इनको देखेंगे अच्छी तरह, एक ही सिंपल वे में, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद जो आप कन्फ्यूजन हो आपके मॉडल वर्ब के रिगार्डिंग, ये ज़रूर क्लियर होंगे, साफ हो जाएंगे इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद। चलो हम सबसे पहले देखते हैं, लेट्स वी चेक आउट द फर्स्ट व्हाट इज मॉडल वर्ब। सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल वर्ब क्या है एक्चुअल में। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड आर टू, ये सब क्या है? मॉडल वर्ब है। हम पढ़ेंगे आज पूरे इन सबों के बारे में, ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, किस सिचुएशन में हम इन मॉडल्स वर्ब को यूज़ कर सकते हैं, इनको यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, इनको यूज़ करने से हमारे स्पीकिंग में क्या इम्प्रूव आ सकते हैं, कौन सा पोलैरिटी आ सकते हैं, कौन सा मैनर आ सकते हैं, मैं सब कुछ बता दूंगा सिंपल वे में। लेकिन वन कंडीशन, यू शुड वॉच द लेक्चर फुल एंड कंसंट्रेटली, ओके। इन सभी मॉडल वर्ब को हम यूज़ करते हैं एबिलिटी दिखाने के लिए, परमिशन दिखाने के लिए, इंस्ट्रक्शंस, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन, certainty, probability एंड possibility। ये सब इन चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या दिखाने के लिए? वंस अगेन आई विल रिपीट दिस। एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल, परमिशन, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशन, certainty, probability and possibility. Okay, keep all of these in your mind. ये सब अपने माइंड में रखना। इसके बाद मॉडल वर्ब को आप यूज़ करने में आसान हो जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। इसके बाद हम देखेंगे वन बाय वन सेंटेंस बना के आपको समझाएंगे कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, किस किस मोड पे हम किस मॉडल वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स वी मूव। सबसे पहले हम देखेंगे कैन और कुड को यूज़ करेंगे एबिलिटी में। एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैन और कुड। नाउ लेट्स वी सी थ्रू एन एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे हम कैसे यूज़ करते हैं कैन और कुड को एबिलिटी को दिखाने के लिए। जैसे कि आई कैन विन द रेस, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? एबिलिटी। इसका मतलब क्या है? ये बंदा रेस जीत सकता है, या मैं रेस जीत सकता हूँ। यहाँ पे कैन बोल रहे हैं, उसका मतलब होता है सकता। एबिलिटी दिखा रहे हैं मेरे भाई। आई कैन प्ले क्रिकेट, यहाँ पे भी क्या दिखा रहे हैं? एबिलिटी। ये चीज़ याद रखना। कैन और कुड को हम अभी यूज़ कर रहे हैं एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, शी शुड रीड व्हेन शी वाज 4। I could pause my driving test at the test try। ये सभी यूज़ कर रहे हैं एबिलिटी दिखाने के लिए। एबिलिटी को कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हैं हम? कैन और कुड। ये चीज़ें रखना, इनको माइंड में रखना और सेंटेंस को थोड़ा रीड आउट कराओ। मैं ज़्यादा इनको समझाते नहीं बैठूँगा क्योंकि आप खुद समझ जाएंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया है एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने सबसे पहले यूज़ किया कैन और कुड। इसके बाद आगे देखेंगे हम परमिशन लेने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब
कैन, could, may एंड might, इन सभी का हम यूज़ कर सकते हैं परमिशन लेने के लिए। चलो हम देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। यहाँ पे पहला सेंटेंस में मैंने डाला है कैन और could, इन दोनों में से एक को आप यूज़ कर सकते हैं। कैन या could, I have some more tea, क्या मैं और चाय पी सकता हूँ। Could I stop work half an hour early, क्या मैं आधा घंटा पहले काम को बंद कर सकता हूँ। Could I take your car for the afternoon, क्या आफ्टरनून तक मैं आपके कार ले सकता हूँ। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे कैन और कुड में इतना फ़र्क है। कैन जो है हम इनफॉर्मल वे में यूज़ कर सकते हैं, कुड को एक फॉर्मल वे तरीके से हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एक रेस्पेक्ट तरीके से अगर हम किसी से परमिशन लेंगे उस टाइम कुड को यूज़ कर सकते हैं कैन के जगह। ये बेटर है इंग्लिश में, अगर आप कुड यूज़ करेंगे कैन के जगह, इसको माइंड में रखना। और कुछ सेंटेंस जैसे कि could I possibly take your car for the afternoon, क्या ये मुमकिन हो सकते हैं कि आफ्टरनून तक मैं आपके कार ले जाऊँ। Do you think I could leave my babies here for half an hour, क्या मैं बेबीज़ को आधे घंटे के लिए यहाँ पे छोड़ के जा सकता हूँ। May I use your phone, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने यूज़ किया मैं का, किस चीज़ के लिए, परमिशन के लिए। अभी हम है परमिशंस के लिए कौन कौन से मॉडल वर्ब यूज़ कर सकते हैं, बोला मैंने कैन, could, may, might, ये चीज़ माइंड में रखना। इनके बेसिस पे हमने सेंटेंस बनाया है, ये सब परमिशंस लेने के लिए ये चीज़ माइंड में बिल्कुल फिट करके रखना। May I help you, might I make a suggestion, बस इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करते नहीं बैठूंगा क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ क्लियर कट, और इन कंसेप्ट को माइंड में रखना और खुद सेंटेंस बनाना इजी है। बाकी मेन चीज़ है कंसेप्ट को समझना, कैसे कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, इसको माइंड में डालना। मैंने आपको पहले बताया एबिलिटी के लिए कैन और कुड दोनों यूज़ कर सकते हैं। कैन और कुड में क्या डिफरेंस है ये भी बताया। कैन हम अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, इनफॉर्मल वे तरीके से हम कैन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मली एक पोलाइट तरीके से बात करना चाहें तो आप कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स इट। और परमिशन के लिए भी कैन, कुड, मे, माइट, इन सबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन का तो मैंने ऑलरेडी पहले बताया, और उससे बेटर पोलाइट वे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। पोलाइट वे तरीके से परमिशन लेना चाहेंगे तो आप कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन के जगह मैं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं परमिशन लेने के लिए। चलो हम देखते हैं इससे आगे की सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ पे है कंपल्शन, ऑब्लिगेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इन सभी के लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट, ये चीज़ याद रखना। कंपल्शन, ऑब्लिगेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इन सभी के लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट। मॉडल वर्ब मस्ट को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, वो ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी गलती का। यू मस्ट इम्प्रूव योर राइटिंग, आपको ज़रूर अपनी राइटिंग को सुधारना चाहिए। मस्ट। योर फोन इज़ स्विच ऑफ, योर मदर मस्ट बी वरीड अबाउट यू, आपका फ़ोन स्विच ऑफ है, उसकी वजह से आपका माँ बिल्कुल वरीड हुए लो, परवाह। इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं कंपल्शंस, ऑब्लिगेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं चलो देखते हैं हम शुड को हम कहाँ यूज़ करते हैं और किस टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। शुड इज़ यूज्ड फॉर सजेशन, एडवाइस एंड ओपिनियन। इट इज़ लेस स्ट्रॉन्ग देन मस्ट कंपेयर। इसका मतलब क्या है, शुड हम यूज़ कर सकते हैं सजेशन के लिए, एडवाइस देने के लिए एंड ओपिनियन देने के लिए। ये लेकिन ज़्यादा मुझे कम स्ट्रॉन्ग है लोग किसी कंपैरिजन में, मस्ट के कंपैरिजन में। शुड के जगह मस्ट को यूज़ करना बेहतर होते हैं लोग इस टाइम, सजेशंस, एडवाइस एंड ओपिनियंस देने के टाइम। यह चीज़ याद रखना।
All drivers must have adequate insurance. It's the law. तमाम ड्राइवरों के पास मुनासिब बीमा होना ज़रूरी है। लो, ये क्या है? लो, कानून है। लो, चलो हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। You should insure your computer against accidental damage. It's sensible. आपको अपने कंप्यूटर के हादसाती नुकसान से बचाना चाहिए। ये समझदारी है। लो, इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं शुड को और मस्ट को क्या देने के लिए? सजेशंस, एडवाइस एंड ओपिनियन देने के लिए। ये चीज़ याद रखना, इनको अच्छी तरह माइंड में रखना कैसा हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, चलो हम देखते हैं इसके बाद ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन सा मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी मेड मोर पोलाइट बाय यूजिंग शुड इंस्टेड ऑफ मस्ट। इसका मतलब क्या है? ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस में ज़्यादा पोलाइट बनाते हैं लोग कौन? शुड, किसके बजाय? मस्ट के बजाय। हमें उस टाइम मस्ट के बजाय शुड को यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा पोलाइट है। लो, किसके बदले? मस्ट के बदले। चलो हम देखते हैं शुड को यूज़ करके ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देते समय। जैसे कि एप्लीकेशन शुड बी सेंट बिफोर 20 जून। दरख्वास्त 20 जून से पहले भेजी जाए। यहाँ पे क्या दे रहे हैं? इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इस तरह शुड को हम यूज़ कर सकते हैं। लोग मस्ट के जगह, ये चीज़ याद रखना। विजिटर्स शुड रिपोर्ट टू द ऑफिस। विजिटर्स को क्या करना चाहिए? लो, ऑफिस में ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए। लो, ये चीज़ याद रखना। इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं शुड को। यह चीज़ माइंड में रखना। यहाँ पे ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस देते समय हमें शुड को यूज़ करना है। लो, मस्ट की जगह, क्योंकि मस्ट के बजाय ये शुड अगर हम यूज़ करें ये ज़्यादा पोलाइट दिखाते हैं। लो, ये चीज़ याद रखना। बोलते समय हमें यूज़ करना है मस्ट के जगह शुड को। ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देते समय ये ज़्यादा पोलाइट है, इसको माइंड में रखना बिल्कुल अच्छी तरह। जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ किया एप्लीकेशंस को और विजिटर्स को। इनको क्या करना चाहिए? लो, एप्लीकेशंस शुड बी सेंट बिफोर 20 जून। ये चीज़ याद रखना। चलो इसके बाद हम देखते हैं ought to। ought to को हम कैसे यूज़ करते हैं और किस जगह में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ought to is similar to should but less common. It is followed by to। ये चीज़ याद रखना। ought to को हम शुड की जगह यूज़ कर सकते हैं। ये सिमिलर है लो, शुड की तरह है लो, लेकिन ये कम यूज़ करते हैं लो। लेकिन आउट के साथ टू आते हैं। आज अभी तक मैंने बोला आपको मॉडल वर्ब के साथ टू नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ टू आ गया। ये क्या बात है? लेकिन ये चीज़ याद रखना, आउट टू जो है इसी के साथ है, ये कहीं से लाया गया नहीं है। यह चीज़ याद रखना। सबसे पहले हम दो सेंटेंस बनाया है, उनको रीड करते हैं। यू ought to insure your computer। आपको अपने कंप्यूटर का बीमा करवाना चाहिए। People ought to smile more। लोगों को ज़्यादा मुस्कुराना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया? चाहिए। शुड का मतलब है ना चाहिए। ought to का भी मतलब सेम है, किसकी तरह? शुड की तरह। ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़, जब आप मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं तो उस टाइम सेंटेंस का फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? सेंटेंस कैसे फ्रेमिंग होना चाहिए? सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, इसके बाद आना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म यूज़ करते हैं। ये चीज़ माइंड में रखना। कीप दिस इन योर माइंड। ओके। ought to को किसके जगह हम यूज़ कर सकते हैं? शुड के जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखना। ought to को हम सजेशन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, किसके बजाय? शुड के बजाय। ये चीज़ माइंड में रखना। बस बाकी सिंपल है। एवरीथिंग इज ईजी बट वन कंडीशन यू शुड कीप इन योर माइंड कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना। बाकी सिंपल है। एवरीथिंग, हर चीज़ ईजी के साथ ग्रैब कर सकेंगे। इस तरह माइंड में रखना बस कंसेप्ट को, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। एवरीथिंग सिंपल। इसके बाद हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी
और पॉसिबिलिटी के लिए हम कौन सा मॉडल वर्ब को यूज़ करें, किस किस मॉडल वर्ब को हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, इनको एक्सप्रेस करने के लिए, इनको दिखाने के लिए हम कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। मैं, माइट, कैन, कुड, इन चारों को यूज़ कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। यह चीज़ याद रखना, probability, to talk the probability that something and so or will happen, we can use may। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? probability जो है वो बात करते हैं लोग जो चीज़ ट्रू होते हैं, सही होते हैं या फ्यूचर में होने वाला है, उस टाइम हम यूज़ करते हैं लोग इन सभी मॉडल वर्ब का, मैं, माइट और कैन, कुड, और हम यूज़ कर सकते हैं मैं। सबसे पहले हम मैं को यूज़ करके हम सेंटेंस बनाते हैं। ये चीज़ देखते हैं मैं को यूज़ करके हम कैसे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, इन दोनों के लिए ये सभी मॉडल वर्ब यूज़ कर सकते हैं। मैं, माइट, कैन, कुड, ये अपने माइंड में फिट करके रखना और इनके थ्रू हम सेंटेंस बनाते हैं। कैसे हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं? टू यूज़ these for model verb for probability and possibility. Okay, now let's read out this sentence. The shop must still be open. वो दुकान खुला हो सकते हैं अभी भी। यहाँ पे क्या लगा? मैं, still be open, अभी भी खुला हो सकता है। We may go to Switzerland this summer. यहाँ पे भी क्या दिखा रहे हैं? Probability या पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि इस समर में हम स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं। मैं यूज़ किया, जा सकते हैं, लेकिन इतना श्योरिटी नहीं है कि जा सकते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं, चांस दिखा रहे हैं। वी मे गो टू स्विट्ज़रलैंड दिस समर जस्ट लाइक दिस। ओके, इनको कहाँ कहाँ यूज़ करना है? मेन चीज़, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ माइंड में होना चाहिए बस। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मॉडल वर्ब मे, माइट, कैन, कुड। ये चीज़ माइंड में रखना बस। बाकी इजी है, बाकी खुद बना सकते हैं सेंटेंस, जैसा चाहे वैसा सेंटेंस बना सकते हैं। उस पर ध्यान देना कि यूज़ कब कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मे, माइट, कैन, कुड, इन मॉडल वर्ब का इस्तेमाल। चलो हम यहाँ पे देखते हैं माइट और कुड। माइट एंड कुड एक्सप्रेस करते हैं स्मॉलर पॉसिबिलिटीज़। किसके कंपैरिजन में? मैं और कैन के कंपैरिजन में ये दोनों कम पॉसिबिलिटीज़ दिखाते हैं लोग। कम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं माइट और कुड। ये दोनों याद रखना। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेंटेंस बना है, उसको थोड़ा रीड आउट करते हैं। इट माइट या कुड, इन दोनों में से एक को यूज़ कर सकते हैं। It might could rain later. बाद में बारिश आ सकते हैं, but I don't really think it will. लेकिन मुझे यकीनी तौर पर तो मालूम नहीं कि होगा नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पे क्या दिखाते हैं? कम प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं। ये चीज़ याद रखना। कम प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब माइट और कुड का। ये चीज़ याद रखना। और दूसरा सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस यहाँ पे क्या कहते हैं? You might pass the exam. यहाँ पे भी क्या दिखा रहे हैं? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, एग्ज़ाम में पास होने की चांसेस कम है मेरे भाई, यही बोल रहे हैं। दूसरा और थर्ड सेंटेंस यहाँ पे आई कुड अटेंड द पार्टी। हाँ, मैं पार्टी अटेंड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी क्या दिखा रहे हैं? चांस है, कम चांस है। यहाँ पे स्मॉलर प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, आई कुड अटेंड द पार्टी। ये भी यहाँ पे कम चांसेस दिखा रहे हैं। ये चीज़ याद रखना, माइट और कुड को कम चांसेस होते हैं कि स्मॉलर प्रोबेबिलिटी, जो इम्कान कम होते हैं, होने के चांसेस कम होते हैं, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए माइट और खुद का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह चीज़ याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं मॉडल वर्ब विल एंड वुड। ये दोनों हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कब यूज़ कर सकते हैं? इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं विलिंगनेस को दिखाने के लिए और टिपिकल बिहेवियर या किसी की चाहत को हम बताने के लिए या मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं लोग? विल और वुड का इस्तेमाल करते हैं लोग। चलो हम देखते हैं। वी कैन यूज़ विल टू टॉक अबाउट विलिंगनेस टू डू समथिंग। यहाँ किसी चीज़ के करने की ख्वाहिश, जब हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं ना, उस चीज़ की तरफ
अपना विलिंगनेस दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं विल और वुड का, ये चीज़ याद रखना। लेकिन विल और वुड में डिफरेंस यही होते हैं कि विल थोड़ा कम मैनर होते हैं किसके कंपैरिजन में, वुड के कंपैरिजन में। वुड थोड़ा ज़्यादा पोलाइट होते हैं विल के कंपैरिजन में, ये चीज़ याद रखना। हम जाते हैं सेंटेंस के थ्रू, कैसे सेंटेंस में हमने यूज़ किया है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। विल यू कम दिस वे प्लीज़, क्या आप इस रास्ते से आ सकते हैं। यहाँ पे विल को यूज़ करके हमने बता रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, ही विल डू एनीथिंग फॉर मनी, वह कुछ भी कर सकता है, किस चीज़ के लिए, पैसे के लिए। इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं विल और वुड मॉडल वर्ब को विलिंगनेस को दिखाने के लिए और टिपिकल बिहेवियर को दिखाने के लिए। विलिंगनेस एक्चुअल में क्या होता है, इरादा, किसी चीज़ को करने का इरादा होता है ना, उस चीज़ को दिखाने के लिए। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि क्या इस रास्ते से आ सकते हैं यहाँ, तो विल यू कम दिस वे प्लीज, यहाँ पे विल यूज़ किया है। अगले में हम देखेंगे वुड को यूज़ करके कैसे पोलाइटनेस बनते हैं, कैसे रेस्पेक्ट तरीके से बात को वुड यूज़ करके कह सकते हैं, उसको हम देखेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि यहाँ पे अपने फ्रेंड के, जैसे कि फ्रेंड को हम बताते हैं ना, ही विल डू एनीथिंग फॉर मनी, यहाँ पे इतना पोलाइटनेस होने की ज़रूरत नहीं होते हैं इस तरह। इसके बाद लास्ट है वुड। वुड इज़ लेस डायरेक्ट एंड कैन बी यूज इट टू मेक अ रिक्वेस्ट मोर पोलाइट, ये चीज़ याद रखना। वुड जो है ज़्यादा पोलाइट दिखाते हैं लोग किसके कंपैरिजन में, विल के कंपैरिजन में। यह चीज़ बिल्कुल माइंड में रखना है। जब भी आप कहीं पे भी आप बात कर रहे हैं या इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश में, आपको ये चीज़ माइंड में रखना है, आपके सामने कौन है, उसके प्रोस्पेक्टिव या उसके हिसाब से बात करना है। विल कब यूज़ करना है, आप वुड कब यूज़ करना है। यहाँ पे पहले दो सेंटेंस में हमने यूज़ किया विल, अभी हम यूज़ करेंगे वुड को यूज़ करके कैसे सेंटेंस को एक पोलाइट तरीके से बात को रख सकते हैं। जैसे कि वुड यू कम दिस वे प्लीज़, हाय कैसे बन रहा है सेंटेंस, वुड यू कम दिस वे प्लीज़, ये पोलाइटनेस दिखाते हैं वुड यूज़ करने से। पहले में क्या दिखा रहे थे, हम थोड़ा अपने दोस्त के साथ विल यूज़ करके बात कर सकते हैं। जब आप थोड़ा आपसे ऊपर वाले या आपसे बड़े वाले शख्स से जब बात करते हैं तो रेस्पेक्ट तरीके से बात करने के लिए वुड को यूज़ कर सकते हैं। अपनी विलिंगनेस को दिखाने के लिए वहाँ वुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ माइंड में रखना। विल और वुड में यही फ़र्क है, एक में थोड़ा रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं और विल में इतना रेस्पेक्ट नहीं होता, इतना पोलाइट नहीं होते हैं, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस जो बनाए, वुड यू हैव मी योर फेवर प्लीज़, कि आप मेहरबानी करके मेरा साथ देंगे। यहाँ पे भी क्या दिखा रहे हैं, पोलाइटनेस सेंटेंस में यही फ़र्क है विल और वुड का। बस बाकी तो पता चल गया ना कहाँ कहाँ यूज़ करना है। मेन चीज़ वो फर्स्ट वाला मैं और एक बार रिपीट करना चाहूँगा जो मैंने आपको बताया था। क्या क्या है मॉडल वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और आर टू, ये सब मॉडल वर्ब है। इन सबको हम यूज़ करते हैं लोग किस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, एबिलिटी, परमिशन, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशन, सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। ये चीज़ माइंड में रखना। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आएंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और मज़े में रहना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना। बाय बाय।